Let's start. Uh, Today we are covering hashing technique. What is hashing? Hashing is a searching technique, right? Where we use hash codes or hash functions. Why we are doing that? To reduce searching time, right? जनरली आपका जो भी आप बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट करते हो उसका उसका जो आप निकालते हो टाइम कि भाई सर्चिंग में कितना टाइम वर्स्ट केस में लग रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन या फिर ऑर्डर ऑफ लॉग एन आता है, राइट? बट हैशिंग टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तो ऑर्डर ऑफ वन पे ही वो सर्च आउट कर लेता है। तो इट इज ए इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग जहां पर आप एक इंडेक्स भी क्रिएट करते हो। होता है बुक्स में होता है, आपको अगर बुक में कुछ सर्च करना है तो सबसे पहले आप इंडेक्स ही देखते हो और इंडेक्स में एक पेज नंबर पड़ा होता है, डायरेक्ट वहां जंप कर जाते हो ना। ऐसा तो नहीं करते कि एक एक पेज पलट के जाते हो वहां पे, राइट? सो दिस इज हैशिंग टेक्निक, राइट? इट्स ए काइंड ऑफ इंडेक्स बेस्ड टेक्निक वेयर वी यूजेस हैश कोड्स, वी कैलकुलेट हैश कोड, इट यूजेस इट यूज द फंडा ऑफ हैशिंग, right? Hash code nothing, it is an index, right? If you in general, if you want to understand, it's a index, right? Hash code will generate index for particular element present in the array or whatever data structure you have, right? So hashing is a searching technique, but in hashing, when we apply hashing, maybe the chance that you will get two elements, you will get single index number for two key elements. We already did it in the last class. Example of 6 and 26, you will get in hash code for both of the item for 6. So it will be collided, right? You cannot store two elements at the same position, so that will be called as collision, right? So we need collision removal techniques. We cannot remove completely, but we can minimize it to the certain level, right? So in that case, we we have two types of methods: open hashing and closed hashing. Open hashing, what is the another name of open hashing? What is the other name of open hashing? Closed addressing. You can write it closed addressing. Addressing. And what is the other name of closed hashing? Open address. Open open Addressing. addressing. So till this point, we have covered two methods, one from open hashing, second from closed hashing. We have covered chaining. You already understand it. In the chaining, what we do at the time of collision, we simply linked it with a linked list. A node will be inserted at that particular index. Clear? In last class you understood now, right? ऐसे ही तो होता था बच्चे कि अगर सेम इंडेक्स पे आ जाएगा, मान लो 6 इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पे पुट कर देते थे, एक की जोड़ देते थे, एक नोड जोड़ देते थे लिंक लिस्ट वाली। और इन केस ऑफ प्रोबिंग क्या करते हो आप? प्रॉप करते हो, सर्च करते हो। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पर अवेलेबल नहीं है, अगर मान लो आपका ये हैश टेबल है, इसमें 6 एलिमेंट पे कुछ 2 पड़ा हुआ है और फिर से एक इंडेक्स जो नया एलिमेंट आया, लेट्स से 26 था, उसका भी 6 आएगा। तो जब 6 आएगा तो आप प्रॉप करोगे फर्दर लोकेशन पे, देखोगे इसकी नेक्स्ट लोकेशन खाली है तो वहां डाल दोगे, नहीं है तो फिर वहां डाल दोगे। ऐसे कुछ था, राइट? सो टिल दिस पॉइंट वी कवर्ड टू methods. One is chaining and second one is linear probing, linear searching. Linearly we will search for a space, blank space to insert key element, right? So now in this class we will cover further two methods we have. Which is quadratic probing and double hashing. Important one is double hashing, right? We will cover quadratic probing, but by default, if you are asked to solve the question using closed hashing, then by default you will use, this will be our linear probing. This will be our default method, right? So let's move to quadratic probing. Third one we have quadratic
probing. Okay. So how it will work? The main point in this, in case of linear probing, what was the formula? In case of collision, where we need to search u plus I modulo 10. So in this case, in case of quadratic probing, it will be insert ki at first free location from u plus I square modulo m, where I ranges from 0 to m minus 1. This will be the basic fundamental rule for quadratic probing, right? So let's understand it with example. We have same example in this case also. Our given array was 3, 2, 9, 6, 11, 13, 7, 12, and given has key rule is hk given as 3k plus 3, where m is 10, and we have given that we have to use division method in the question. This is the same question, division method, and plus what we have given, using quadratic probing. It is explicitly given. If it is not given, then which one we have to apply? Linear one, right? But in question it is given that you have to solve it by using division method and quadratic probing, right? Okay, so make it into your copy notebook, make a hash table. Let's say this is our hash table. Right, this is our hash table. Index numbering will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Key, it is u, and number of props. Okay, then solve it till the point we don't get any collision. Solve it till that point and tell me the values. Okay, solve it. First key was, what is first key? 3. For 3, solve u. What will be the value of u? What will be the value of u? In the last class you were there now? 0. 0? How? 3, sir. 3. 7. Everyone having wrong answers.
In the last class, what we did? We have to first use this formula. Use this formula to find. Oh, sorry, this is, I have written wrong. It is 2. That's why you are getting different answers. Now check it. In the question, that was 2 now. Okay, now check it. For 3, what will you get as a u? क्या आएगा? 9. किसी का और कुछ आ रहा है? नहीं, ठीक है, तो 9 आएगा। तो 9 के केस में हमारे पास कोलिजन होगा। कैन यू टेल मी, क्या कोलिजन होगा? नो सर। नो सर, ठीक है। तो यानी कि मैं जाऊंगा किस प्लेस पे? 9th प्लेस पे। 9th प्लेस पे जाऊंगा और क्या स्टोर करूंगा? 3। तो 3 चला गया आपका 9th प्लेस पे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉप्स 1। ओके, फॉर नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट इट फास्ट। For next element, for 2, what we are getting? 7, correct. That means at the time, at 7th place, I will go to store it 2. Right? For next, for 9, what will you get? 21. 1. 1 simply. Okay. So we will store 9 at first index. Next, for 6, 5, right. Then number of props 1. So for 6, we'll get 5th index. We'll store 6 at 5th index. Now for 11, 13, and 7 and 12. Okay. For 11, we will get 5, and 5th one is already filled. 5th one is already filled. See the index? Index Yes, sir. here. Yes, sir. 5th one is already filled. Then we have to use formula. Which formula we will use? U plus I square modulo n. Calculate it. कहां पर मुझे चेक करना है? अब जैसे मेरे को 5th मिल गया, ये 5th मिला, 5th में मैं गया, 5th पे तो ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है, तो मुझे कोई एक फर्दर फ्री लोकेशन ढूंढनी है। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला गिवन है, u प्लस आई स्क्वायर बाई सॉरी मॉड्यूलो एन एम। क्या आएगा उससे? रख के देखो उसमें। नेक्स्ट कौन सी सेल पे जाऊंगा मैं? कौन से इंडेक्स पे जाऊंगा? बैठक गया भाई, तो समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? ये सिंपल है, ये इससे पहले पढ़ाया भी नहीं गया है, फर्स्ट टाइम ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो नोट कर बेटा, अगर नहीं है तो क्लास में जाना, क्लासरूम में ज्वाइन करना, हमारी जो क्लासरूम है गूगल की, उसमें जाना, उसमें जो पुरानी क्लासेस हैं उनके वो पढ़े हुए हैं नोट्स, इवन वीडियोस पढ़े हुए हैं, वो वीडियो सारे देखते जाए, एक तरफ से तेरे को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो क्या करना है मुझे? अब प्रॉबिंग में क्या करते हैं हम? प्रॉबिंग में सर्च करते हैं ना फ्री स्पेस। पहले वाली प्रॉबिंग जो थी हमारे पास, लीनियर प्रॉबिंग जो थी हमारे पास, उसमें हम वन आफ्टर अनदर सर्च करते हैं, नेक्स्ट स्पेस सर्च कर रहे होते हैं, मतलब सेम इंटरवल पे, एक एक के गैप पे हम चेक कर रहे होते हैं। इसमें हम क्वाड्रेटिक स्क्वायर की फॉर्म में जाने वाले हैं। अब पहले नेक्स्ट में जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर 5th पे जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है? तो क्या था हमारा? u प्लस आई स्क्वायर मॉड्यूलो m। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो वही आएगा, 5 ही आएगा। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा? आई की वैल्यू 1 रखोगे ना। u क्या है इसमें? मुझे बता देना, u क्या है? u की वैल्यू बताओ करंट। 5, u विल बी 5 प्लस आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर अगर मैं 0 रखता हूं आई, तो वो तो वही रहने वाला है। 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 6 मॉड्यूलो 10, यानी कि मुझे अब कहां जाना है? 6th लोकेशन पे।
तो 5 से मैं आगे गया, 6 लोकेशन में चेक किया क्या वो फ्री है, हाँ है फ्री है, तो वी कैन पुट 11 हियर, राइट? sir. ओके, नाउ हाउ मेनी प्रॉप्स वी डिड? 2, right? For 13 what we will get? We will get 9. Similarly for 7 we will get 7, for 12 we will get 7 again, right? So 9 पे जाओ, 9 पे हम लोग यहां से गए, यहां से हम लोग 9 पे आए, तो 9 पे देखा क्या ऑलरेडी फील्ड है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 के लिए तो सेम आएगा, 0 पे आ जाएगा सर। 1 पे करेंगे तो क्या आएगा, 10 मॉड्यूलो 10 0, यानी कि, और वैसे भी लॉजिकली भी इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कहां है, 0, ठीक? तो हम इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पर 13 को, क्लियर? नंबर ऑफ प्रॉप्स 2. नेक्स्ट फॉर 7 वी गॉट 7 एज ए यू, 7 पे जाते हैं, 7 पे गए, ऑलरेडी फील्ड है, प्रॉप करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करो, प्रॉप करो, 1 पे क्या आएगा, 8 पे जाएंगे, ब्लैंक है, ब्लैंक है तो हम पुट कर सकते हैं वहां पे, तो 7 आपका यहां पे आ जाएगा। अभी ढंग से लिख नहीं पा रहा है ये, फोर्थ पे आ 7 जाएगा। यहां पर आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है? ओके, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, हाउ नंबर ऑफ प्रॉप्स वी डू इट, 2. नाउ चेक दिस फॉर 12, check it, we will get 7. Let me choose another color, let me choose black color, or this one, this is easily visible. Okay, so for 7 we will go to 7th index, 7th index, we find that it is filled, then next we probe according to this rule, 8 पे गए, 8 भी filled है, फिर कैलकुलेट करा, फिर हम यहां पे पहुंचेंगे 9 पे, या 9 पे पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखा करो बच्चे, ऐसे हवा में नहीं तीर चलाते हम लोग। चलो ये भी अच्छा हो गया, ये खुल गया चलो 12 के लिए हम लोग कहां पे थे, 12 के लिए कर रहे थे हम 7 पे थे ना, तो ये तो हमारा क्या था u, तो चलो u प्लस आई स्क्वायर मॉड्यूलो 10, तो क्या आएगा, u है 7, 7 प्लस 0, ये तो 7 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम जा नहीं सकते क्रॉस इट, 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 8, we won't choose it, okay, next 7 प्लस 2 का स्क्वायर 11, 1, sorry 1, it is 1, okay, it is 1, तो 1 पे चेक करते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पे आ जाएगा। 1 पे फील्ड है, अरे प्रभु, ओके, 1 पे चेक किया, 1 पे फील्ड है ऑलरेडी, हम लोग यहां से 8 से डायरेक्टली जंप करके आ गए 1 पे, 1 पे ऑलरेडी फील्ड है, फिर हम आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, प्लस 9, 9 कैसा है पता है ना बच्चे, कोई कंफ्यूज तो नहीं इसमें, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, कितना हो गया 16, 6, अब हम 6 प्लेस को चेक करते हैं, 6 फील्ड है, वी कैन नॉट टेक इट, राइट, तो हम वो आगे बढ़ेंगे, यहां से हम जंप करके आगे 6 पे फील्ड है, तो फिर नेक्स्ट चेक करो, 7 प्लस 16 मॉड्यूलो 10, कितना हो गया 3, 3 पे 3, नेक्स्ट चेक इट, 3 इज ब्लैंक,
So after jumping back to 3, we have blank space. That means 12. We can put 12 here. Right? Clear है? कोई ना प्रॉब्लम तो ना है? ठीक है, तो यानी कि हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है, कोई पेंडिंग तो नहीं है अब. नंबर ऑफ प्रॉप्स 5. Number of props 5. In previous case, in case of 12, how many props we had? 6. In previous case, in linear one, we had 6 here. So this is better one. Yes, sir. This is better one, right? So quadratic probing is better one in case you have data spreaded around, right? अगर आपके पास एक के बाद एक अनफिल्ड स्पेस है, तब तो आपका लीनियर प्रोबिंग प्रॉपर्ली काम कर जाएगा, बढ़िया काम करेगा. बट इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, दिस काइंड ऑफ स्पेसिंग, देन quadratic probing may give you a best result, right? So in this case, number of total props will be total 15. And order of elements, can anybody tell me what will be the order of elements if you would be asked? 39 से एक बोलो. 13 gap या dash? Okay, so order of probing will be 13, 9, dash, 12, dash, 6, 11, 2, 7, 3. This will be the order of elements, right? You may ask, this will be asked, right? ये आपसे पूछा जा सकता है कि Yes, भाई टोटल नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने हुए, और या फिर एवरेज नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने हुए. एवरेज नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉप्स बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट? Yes, sir. और ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स तो समटाइम्स पूछता है गेट में भी और नेट में भी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. इज दैट क्लियर टू यू? क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, now next we have, if it is clear, we should move ahead. सबको क्लियर है? कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल है, बड़ा सिंपल था ये, मैथमेटिक्स बेस्ड है, इसलिए बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? तो इसमें कोई ज्यादा डाटा स्ट्रक्चर वाला गेम है नहीं, सारा मैथमेटिक्स गेम है. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन we have double hashing. In this case, we will be using two hashes at the time of collision only. Remember, at the time of collision only. अगर आपको कोलिजन नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर उसको दूसरा हैश कैलकुलेट नहीं करने वाले यहाँ पे, ठीक है? तो सेम क्वेश्चन से देख लेते हैं. इसमें जो रूल रहेगा आपका, वो सब लाइन सेम रहेगी. इंसर्ट करके, इंसर्ट के आई फ्रॉम, इसका जो रूल होगा वो होगा u प्लस v, दिस इज v, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाइड बाय i मॉड्यूलो m. ये इस पे काम करेगा. इसमें जो प्लेसिंग होगी वो इस रूल से होगी. उसमें पहले वाले में किससे हो रही थी? u प्लस आई, दूसरे वाले में u प्लस आई स्क्वायर, तीसरे वाले में u प्लस v प्लस आई. और v क्या है आपका? v है सेकेंड हैश कोड. सेकेंड हैश v will be calculated by second hash given in the question. If they give question of double hashing, definitely they will be you will be given by two hashes, h1 and h2. h1 will be used for u calculation and h2 will be used for v calculation. Okay, so let's say, okay, let's सेम क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं. ए क्या था हमारे पास?
ए था हमारे पास, बोलना जरा, 3 2 9, एक बोलो, कोई एक बोलो, 9 के बाद 6, एक मिनट बचा, 9 6 11 13 7 12, ओके, 3 9 2 6 11 13 7 2 12. H1K is given as, H1K जो आपको गिवन है वो है सेम 2K plus 3, right? And H2K, H2K जो आपको गिवन है वो है 3K plus 1, याद रहेगा? So we will use this one for U and this one for V. Remember that. Okay. M is same. M 10. Right? So make table. Okay. So first make अरे यार, has table. Seven, 8, and 9. This is our hash table, and let's create key U V and props. ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे। यहां पर अब तुम्हें पता चलेगा कि हैश कोड में भी कमियां होती हैं, हैश कोड भी गलत होते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल से हम देखते हैं। तो शुरू के 4 तो कॉमन रहने वाले हैं, शुरू के 4 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई कोलिजन नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 3, उसका हमारा 9 आया था, क्योंकि कोलिजन नहीं है तो v कैलकुलेट नहीं होगा, डैश प्रॉब 1। ये कैलकुलेट करना तो आ गया ना, डायरेक्ट लिख लूँ ना, दोबारा से तो ना करूँ कैलकुलेट? ठीक नो है, सर। ओके, 2 का आया था क्या, 7, फिर नेक्स्ट था हमारे पास 9, 9 का था 1, नेक्स्ट था 6, उसका था 5, नेक्स्ट हमारा 11 था, फिर 13 था, फिर 7 था, फिर 12 था, राइट। और इनकी वैल्यूज जो आई थी, 5 यहाँ पर आई थी, 9 7 7, क्योंकि कोलिजन नहीं है तो इस 2 के लिए भी ब्लैंक रहेगा 1, नंबर ऑफ प्रॉप्स, इसके लिए भी ब्लैंक रहेगा नंबर ऑफ प्रॉप्स 1, इसके लिए ब्लैंक रहेगा नंबर ऑफ प्रॉप्स 1। ठीक है, यहां तक अभी कोलिजन नहीं आया, इस पॉइंट तक कोई भी कोलिजन नहीं है, तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 9 पे 3 आ जाएगा, 9 पे 3 आ जाएगा, राइट। 7 पे 2, देखते रहना बच्चे, गलत हो तो बताना। 7 पे 2 आ जाएगा, 1 पे 9 आ गया, एंड 5 पे 6 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है। ठीक, अब जब हम आए 11 पे, कोलिजन हो गया, क्योंकि 5 पे जाएंगे तो 5 पे क्या हुआ, 5 पे तो ऑलरेडी है पड़ा हुआ, तो कोलिजन हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, अब प्रॉबिंग करनी होगी स्टार्ट, डबल हैशिंग करनी होगी, दूसरी हैशिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये करना है, u प्लस v मल्टीप्लाई बाई i
मॉड्यूलो 10। तो अब v भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे v कैलकुलेट करना पड़ेगा। v कैलकुलेट करना जरा इसके लिए 32 6 6 4, करेक्ट 4। कैसे आया 4? 34 आएगा ना। क्या होगा आपके पास, क्या है u के लिए आपके पास क्या फंक्शन गिवन है? 3k प्लस 1, ये गिवन है। 2k वाला तो u के लिए था, ये सेकंड हैश है, तो h2 यूज होगा ना। तो इसके हिसाब से देखो करंटली क्या आएगा, 11 इंटू 3 इंटू 11 प्लस 1 मॉड्यूलो 10, 34 मॉड्यूलो 10 4। सो v विल बी 4। अब कैलकुलेट करो, अब प्लेस ये निकालो। अभी तो आपने v निकाला ना, ये तो v है। अब ऊपर निकालो u प्लस v इंटू आई, क्या निकलेगा इसका? u कितना है? u 9 सर, 9 टोटल। टोटल, अच्छा ठीक है। u इज 5 प्लस v इज 4। जीरो के लिए हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो ही है, वहां पे जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं जीरो से करूंगा तो ये 5 ही रहेगा, तो उसी प्लेस को टारगेट करेगा। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 4 इंटू 1 मॉड्यूलो 10, क्या आया? 9। 9 पे गए, 9 पे तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि मैं कहां से जंप किया? मैं 5 से जंप करके जब मैं इधर आया 9 पे पहुंचा, 9 तो ऑलरेडी फील्ड है, यानी कि मुझे अब आई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो चेक करो, 5 प्लस 8 3। तो मैं अब यहां से जंप करूंगा, अब मैं यहां से जंप करूंगा और 3 पे चेक करूंगा, क्या मेरे पास 3 अवेलेबल है? हाँ है। तो मेरा 3 ये कहां पे चला जाएगा? 11 3 पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉप्स, कितने हैं आपके? 2 और 3। नंबर ऑफ प्रॉप्स, एक बार आप यहां पर गए, एक प्रॉप यहां पर जंप किया, 2 प्रॉप यहां पर जंप किया, 3 प्रॉप 3। नेक्स्ट 13 के लिए चेक करते हैं, करो 13 के लिए चेक। अब आएगा मजा। जीरो, अब बताओ 13 के लिए। अब हम आए 13 पे, हम लोग 13 पे आ गए। 13 पे क्या है प्लेस मिला मुझे? 9। 9 तो ऑलरेडी फील्ड है, कोलाइड कर गया। क्या करना है अब? v कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करो। 0, v 0 आ गया। अब पूरा कैलकुलेट करो, प्लेस कैलकुलेट करो। v 0 आ गया ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। u क्या था आपका? 9 प्लस इंटू 0, ये आई है। कोई फर्क पड़ने वाला है? हर बार आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपका v 0 हो गया। तो आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, कांट स्टोर। आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बैड हैश फंक्शन की वजह से हो सकता है। आपका जो हैश फंक्शन है उसकी वजह से ये वैल्यू 0 आई, इसलिए आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर टाइम वो 0 आएगा और वो सेम प्लेस को टारगेट करता रहेगा, 9 पे ही करता रहेगा। तो आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये मतलब कोई गलत नहीं है इसमें। हो सकता है, कि सारे के सारा डेटा आप स्टोर ना कर पाए अपनी हैश टेबल में, कुछ लिमिटेड डेटा या कुछ डेटा आपका रह जाए। तो वो डिपेंड करता है आपके हैश कोड पे, जो हैश कोड आपने जनरेट किया, हैश फंक्शन आपने जनरेट किया, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका 1000 का डेटा, तो 1000 का डेटा आपका पूरा
स्टोर आप कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू स्टोर इट। ठीक है, आप उसको उसका हैश कोड जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 0 ही आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेक 7। 7 के लिए वी चेक करो, फिर से कोलिजन हुआ है क्योंकि 7 फील्ड है। क्या आएगा? वेरी गुड, 2। अब प्लेस ढूंढो। ठीक है, 7 के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे, यू क्या है? एर वी हमें निकालना है। वी क्या आया? 3k+1 से निकाला हमने, तो क्या आएगा? के की वैल्यू क्या है? 7। 7 इन 21 + 1 22 मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10 कितना आया? 2। वो 2 आ गया है। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं u + v मल्टीप्लाइड बाय i मॉड्यूलो 10। इसमें रखते जाते हैं। अब चलो रखो, i की वैल्यू 0 रखोगे तो वही आएगा। 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट करो। 7 + 2 9। 9 अवेलेबल है? नहीं है। फिर यहां पे आई की वैल्यू है, ठीक है। 7 + 4 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 1। फेल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 7 + 6 आएगा। 6 मॉड्यूलो 10 3 फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आएगा? 7 + 8 5। ये भी फील्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7 + 10 मॉड्यूलो 10 7 फील्ड है। नेक्स्ट करो 7 + 12 कितना आया? फील्ड है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे आई की वैल्यू 1 थी, 2 3 4 5 6। अभी तक 6 पे पहुंच गई आई की वैल्यू। ठीक है, अब 7 पे देखते हैं। 7 + 14 मॉड्यूलो 10 1 लैंग्ड है। फिर 8 के लिए देखते हैं। 7 + 16 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 3 नहीं कर सकते। फिर 9 पे गए हम। फिर 9 पे गए। 9 पे क्या होगा? यहाँ पर 18 18 + 7 5 आएगा, रिपीट होता जाएगा। यानी कि अब 9 के बाद रुक जाएगा ना। आपकी टोटल कितनी है? हैश की टेबल की साइज 10 है। 10 आई की वैल्यू कहां तक जानी है? 0 to m-1। m-1 9 है, यहां तक जा चुका है। इसके बाद आप कितना भी बढ़ाते रहो वही आने वाला है। आपने टोटल अवेलेबल वैल्यूज पे आपने चेक कर लिया, आपको कोई भी प्लेस नहीं मिला। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि आप इसको भी स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टोर 7 ऑल्सो, कांट स्टोर ड्यू टू बैड हैश फंक्शन, राइट। ये हैश फंक्शन की वजह से आपके ये 2 एलिमेंट आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो नंबर ऑफ प्रॉप्स भी कोई कुछ नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट फॉर 12 you will get another collision. You will check 7, it is already filled. Then you have to calculate v
Calculate V. How? K is 12. 3 into 12 plus 1. 5. कितना हो गया? 36 plus 37. 37 मॉड्यूलो 10. 7. 7. अगेन 7 आ गया. ठीक है, इसका V आ गया 7. अब U प्लस V प्लस I करो. U प्लस V मल्टीप्लाई बाई I मॉड्यूलो 10. U क्या है? 7. V क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो 0 रहेगा, तो हम 1 से कर देते हैं. ये प्लस मॉड्यूलो 10 यानी कि 4. लेट्स चेक 4 is available, so we will go to 4 and store 12 here. Clear हो गया? Number of props 2. Number of props 2. राइट? इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अलग से कैलकुलेट होगा, ये अलग से कैलकुलेट होगा. ये H1 से कैलकुलेट होगा U एंड H2 से कैलकुलेट होगा V. बट कैलकुलेट कब होगा V? V हमेशा कैलकुलेट नहीं होगा. जब कोलिजन होगा तभी V कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा.